media faculty who's present here. So first of all, heartiest congratulations. You both look so lovely on the cover. Thank you. How does it feel to be posing on the cover after such a long time? I'm sure that you posed together, but seeing you on a cover like this, on a print shoot, is something that we've not seen before. Yes. How does it feel? Great. Absolutely great. मुझे जनरली अपने घर में अपनी बीवी के साथ आदत नहीं है फोटो खिंचवाने की ऐसे इन दिनों में, लेकिन बहुत दिनों बाद आई एम ग्रेटफुल टू नारी हीरा एंड ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली Yeah, सुचित्रा. but BB needs only this one photograph. जितने भी निकालो फोटोग्राफ्स, लेकिन ये एक फोटोग्राफ सब खत्म कर देगा. बस ध्वस्त कर दिया, पस्त कर दिया. Certainly is not good for my image to be happily married. But this conveys that मैं happily married हूँ. This is 100 लोहार की, सोनार की और एक लोहार की. So how do you manage your time? I know you're a politician, a very busy, accomplished politician. Also a very big star of like, I don't know. I mean, it's evergreen for you. I really got scared. I thought your question was how do I manage otherwise. Actually, I was coming there. How do you manage both the faculties together so very well? नहीं, see, family is family. So far, she's the only wife, and I'm a president of the. I like the statement. She's the only wife. Anybody married here? There are many married men looking. They're looking married, but they're not be happily married. Because I've always maintained a man either happy or married. He can't be both. In our case, I seem to be married, and I hope, wish, and pray that my wife is happy. Happy. Ma'am, if you can just add on to this, how was your journey with him? No, I'm happy with him being married and me being happy. I'm very happy with that. I just told Nari Hira that when we met first time, it might have been mentioned in the magazine, that we met in the train while I was coming from Patna to Pune to join FTII, and she was coming to Mumbai after attending a marriage in Patna, and her mother-in-law had scolded her, so she was crying, and I was leaving my home, my mother, my family, first time, so I was crying. Now we are married for 35 years. We have got 3 children, Love Sinha, Kush Sinha and Sonakshi Sinha. But character is the same. She is crying and I am crying. There is no change. 35 years. It should be the other way. She should be happy, you should be crying. Because she looks very happy to me, and I'm sure that you are very happy internally. But sir, tomorrow I guess is your 35th anniversary. Is it true? Yes. Oh my God. Okay. So that's what she just confirmed me. She has just confirmed me. Yeah. Tomorrow. It is your 35th anniversary tomorrow, and how 35 years of long journey, being happy. There couldn't be a better anniversary than having people like you over here with this society cover, and that too in the Meghna office. It's a great day, great occasion for us. As far as the anniversary in true sense is concerned, I would say now we leave it to our children to give us a surprise or manage or tomorrow. But so far we haven't got any hint. No, I think even my children have got bored. Have you planned something? I didn't have any hint. But ma'am, is there any plan? Is he taking for a romantic dinner? Is he organizing Romantic dinner, I am told that first casualty after marriage is romance. Casualty, okay? You listen to his words carefully. So anyway, if she wants to take me out anywhere, it's all for her. Since last 1 week, I'm stationed सारा हंगामा, शोर शराबा, तमाम ड्रामा छोड़ के I'm here, बुद्धम शरणम गच्छामि. मैं इनके यहाँ बैठा हुआ हूँ, इनकी चरणों में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे 1 हफ्ते से. और अब जैसा कहेंगी चरणों में चरणों में ज्यादा हो गया, कम कर दूं? ज़्यादा हो गया. तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो कहेंगे करूँगा. लेकिन हाँ, अभी अच्छा तो लगता है कि तो फिर आप ही सरप्राइज बता दीजिए. कुछ सरप्राइज है, आप बच्चों पे क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ तो सरप्राइज आपको देना चाहिए बीवी के लिए. हाँ, जो सरप्राइज मैं दूंगा अब इनके लिए रूटीन हो चुका है. अभी जाकर बताता हूँ घर पे. पहले मैं ये मेरे राह पे चलती थी और मैं यू कैन से कैप्टन ऑफ द शिप था
तो मैं लीड करता था, लेकिन अब जो है टेल वैगिंग द डॉग हो गया है, अब ये आगे हैं और मैं पीछे, जो बोलती है मैं करता हूँ, बिकॉज हर प्रायोरिटीज हैव चेंज। ये होता है मैरिज के बाद नारी कि आफ्टर 25 ईयर्स 35 ईयर्स द प्रायोरिटीज चेंज हो जाते हैं। अब जहाँ पहले मैं था हस्बैंड शत्रुघ्न सिन्हा, अब वो खत्म हो गया। अब शत्रुघ्न सिन्हा का प्रायोरिटी नंबर 4 है। फर्स्ट प्रायोरिटी है लव सिन्हा, देन कुश सिन्हा, देन सोनाक्षी सिन्हा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और अब तरुणा सिन्हा। ये अब प्रायोरिटी नंबर 5। ओके। Okay, but ma'am, you have to tell me, do you, it's been a long journey, it's very, but how does it feel as a woman, you know, because I'm sure that sir is very flamboyant with his nature also. He's managing and juggling in both the arenas so well, whether it is politics or you know, acting as a career. How is he as a husband when he comes back home? All I can say, he's a damn lucky guy to get a wife like me. I like the spirit. I like the spirit. 35 years is a long, long time, and I guess it's the generation. You know, like we were taught tolerance, we were taught patience, and every time you hear the mother saying that लड़की एक बार शादी करके जाती है, then there is no coming back. तुम जाओ वहाँ और वहीं से जाओ. So that's what we were taught. You know, our parents' thoughts were like that. But I guess with every generation it changes. Children grow up, they learn according to their generations. But thankfully, we have been blessed and very lucky with wonderful children who have actually taken up what we have taught them. संस्कार अच्छे हमने डालने की पूरी कोशिश की, and I'm happy that my children have really done it. Yes, I think थोड़ा सा हस्बैंड के बारे में भी। Actually, sir, मैंने husband के बारे में The husband knows. transfer हो गया. Everybody knows. The husband, everybody knows. Okay. And of course, credit goes to him also for, you know, actually tapering down himself. What's in our Well, we're going to keep the chatting continue, ma'am. Sir, I am here opening the entire question-answer session for the media who's present here with us. Please shoot your questions. They are here to answer all your queries. Go on. If you can raise your hand, so it becomes a little easier for us to. Hello, sir. I'm Pooja from Stardust. I'd like to ask you, what kind of a father are you? I mean, are you very protective, very strict, or are you open? That's a Nakshi discuss boys and love issues with you. But don't you think you should ask Love about this? Because he must think. Yeah, can answer. Answer? Yeah? Yeah. He's a great father. He's definitely a strict father, but he's a great father. He's a great father. He's a strict father, but he's made sure that he's always let us have our freedom. And that's probably why we don't go around like taking advantage of that. He's never told us कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पर हमेशा सिखाया है कि मतलब कि what is correct for our family. Our family, you'll all know, we're slightly, you can say, maybe conservative, old-fashioned, but that's the way we like it. And I guess he thinks he's our friend, which he is in a way, but I prefer maintaining that relationship that a son and a father should have. That's how I think about it. Thank you. Well, sir, your comments on this, if you can add up to Love's comments. No, I'm a very friendly father, moderate father, a friendly father who understands, who's been very understanding with the children's demands, desire, you know, their feelings, their understanding. I try my best. Many people won't believe by looking at me. आज तक बच्चों पे मैंने एक उंगली भी नहीं उठाई। आज तक लोग समझते होंगे शायद मैंने बच्चों को खामोश करके पिटाई की होगी। कुछ नहीं, नेवर एवर, ना लव पे ना कुछ पे। मम्मी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, never ever I will vouch for that. I will vouch for that. So I also believe in their freedom, but at the same time, they also understand in their values, family values, dignity, self-respect, upbringing. So अच्छा है, बढ़िया है. Thank you. Well said. If we have more questions. I have a question for Shakti on the political side. Again, political side now on the eve of the anniversary. This is the beginning.
अच्छा, okay. So everybody knows that Shri L.K. Advani is like a mentor figure in politics. And of late, there have been rumors and media reports of friction between Advani ji and Narendra Modi. It's quite apparent in the media also. Do you think that your proximity to Advani ji has cost you a ministerial berth in the Modi government? Many people think so. Many people have told. Many people have told me. Many people think so. But fact remains that today my situation, my understanding with the party is of no demand, no command, no complaints and no expectations. I'm in politics. I'm taking politics not as a profession. I've entered into politics taking it as mission. I could be part of the society, a group who could influence the society or who can put the society in the right track with positive and constructive attitude, could bring the smile on the faces of the people. This is my mission is. As far as Mr. Advani is concerned, he has been my friend, philosopher, guide, guru and ultimate leader. They talk about the friction, but I think Mr. Advani is a very matured person. He is perhaps the last Mughal, the real statesman that India has today. And he is much above all these things. And since I follow him, I also try to put myself on much above all these things. So, if the ministry has not been given to me, or for some reason, I hope is not out of punishment or out of some, because I have not done, I don't deserve any kind of punishment. Since I have not done, I still remain one of the few well-behaved, a man of integrity, commitment and impeccable image in politics. So अगर नहीं मिला है तो कोई शिकायत नहीं है, कोई complaint नहीं है, and much above all these things. But as far as Advani ji is concerned, he is a statesman and it does not matter to him at all. And of course, as far as I have seen, experience, there is no wrinkle, कोई शिकायत नहीं उनके शिकन नहीं उनके चेहरे पे अडवाणी जी के. He's quite comfortable with it, though we do feel bad sometimes. Sir, because a lot of first-time member of parliament this time have managed to become ministers and grab important portfolios. So, I would say, a senior member of the party, Janata Party. I would say that I take it as the prerogative of the Prime Minister. किसको बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, उनका है. But हाँ, जिसको बनाते हैं, जिसको लगता है जो डिजर्व करता है, उसको नहीं बनाते हैं, तो फिर उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में नहीं हो सकती है आपके किसी ऐसी क्राइसिस की घड़ी में या किसी ऐसे कैच 22 सिचुएशन की घड़ी में कि वो आकर फिर आपको ये शील्ड दे या सपोर्ट करे. फिर उससे एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए. हालांकि हम लोग कर जाते हैं, ये हमारी अपनी बड़प्पन है. मैं कई बार देखता हूँ मोबोक्रेसी ओवर डेमोक्रेसी. कई बार मैं देखता हूँ कि पिक्चरें जो सेंसर बोर्ड से पास हो जाती हैं, कई बार नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भी होती हैं, उसके बावजूद भी उसके चलाने पे या उसके लगने पे बहुत लोगों को आपत्ति होती है, तकलीफ होती है, और फिर मॉब फ्यूरी सब सामने लेकर आते हैं, जिसे हम कहते हैं मोबोक्रेसी ऑफ ओवर डेमोक्रेसी. जब आपके सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी, और कई फिल्मों का जो आपने जिक्र किया, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, जो हमने सुनी है, जो मेरी जानकारी है, बजरंगी भाईजान, besides being a real commercial film, a very good film, is a very healthy film, as I would say is the most secular film I have been told in recent times. Secular film is it unites the society. हमने बहुत तारीफ सुनी है बजरंगी भाईजान की. इसलिए my humble submission or request would be कि अभी पिक्चर देखने के पहले ही इस तरह का रिएक्शन ना हो तो अच्छा. किसने देखी? अभी हमने ही नहीं देखी है. आपने कहा कि सलमान खान और हम लोग बहुत अच्छे और हैं भी बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं. जो हमने ही नहीं देखी अभी तक,
तो दूर दूर बैठ कर लोग बोल रहे हैं कि हम देख रहे हो, हमने ये पिक्चर नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक श्लोक गलत बोलने का सवाल है, मैं नहीं जानता किसने देखा और किसने नहीं देखा। यहाँ तो कई फिल्मों में देख रहा हूँ कि शिवा के मुंह से और भगवान के मुंह से गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करना दिखा रहे हैं, वो चल रहा है। और जहाँ तक श्लोक का सवाल है, मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, हमारे कई पंडित जी जो लोग पूजा कराते हैं, चाहे हो सकता है कई इमाम साहब भी, चाहे वो लोग भी करते होंगे, जो उनके एक्सपर्ट बता पाएंगे। हम नहीं बता सकते हैं कि मुझे उर्दू और फारसी वैसे नहीं आती, फारसी तो खैर बिल्कुल नहीं आती, लेकिन संस्कृत में हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं। चूँकि मेरी थोड़ी डिक्शन प्रोनाउंसिएशन ठीक है, तो मैं देखता हूँ कई बार लोग गलत उच्चारण करते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसका मन ये तो नहीं कि वो आदमी गलत है, वो लोग अच्छे लोग हैं, ठीक है। कहीं कोई बंदिश होती है, कोई बंगाल से होता है, कोई पंजाब से होता है, वहाँ का एक्सेंट आ जाता है, वहाँ ये हो जाता है। इसलिए मैं सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि अपील करता हूँ उन लोगों से कि गिव अस ए फेयर चांस, पहले पिक्चर को देखो तो सही। अगर ऐसा होता तो उसको सेंसर बोर्ड पास नहीं करती, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी ने पास किया उसको, तो उसको देखो, उसके बाद ही ऐसा कुछ बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। सर, एक सवाल है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको चुनाव लड़ने का और सबको सामने आने का, सबको अपने अलायंस पार्टनर को लेने का अधिकार है। अगर उन्होंने किया, दे आर ट्राइड टेस्टेड पीपल, नीतीश कुमार, लालू यादव जी, और अभी उनके साथ और भी कुछ लोग मिल गए हैं, कांग्रेस में मिल गए। उसी तरह हमारे बीजेपी में भी बहुत अच्छे आदमी हैं, रामविलास पासवान जी वो भी साथ हैं हमारे, कोई कुशवाहा हैं वो भी साथ में हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन अब इस घड़ी में चूंकि बिहार बाकी स्टेट से ज्यादा कास्ट रिडन है, मालूम है आपको, तो जो पता हो कास्ट रिडन है, तो वहां पे उन लोगों का मिलना, कुछ कास्ट फैक्टर का सामने लेकर आ जाना, ये एक तरफ चौंकाता तो जरूर है, बट इसको हम लोग चैलेंज समझ कर ले सकते हैं। अपने हाउस को ऑर्डर में लाते हुए, अपने ग्रुप को मजबूत करते हुए, डिसिप्लिन के साथ, और अपने एजेंडा, अपनी विचारधारा को सामने लेकर आते हुए अभी भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूं टाइम इज रनिंग आउट, लेकिन अभी भी मुश्किल हो सकता है, कुछ लोगों की नजरों में मुश्किल दिख सकता है, पर नामुमकिन नहीं है। वी कैन स्टिल मेक इट, और हम होंगे कामयाब, ये हम पंक्तियों के चरितार्थ कर सकते हैं। सर, इसी का एडिशन क्वेश्चन है, जिस तरह से देखा जाए कि बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में कई लोग सामने आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं नहीं हूँ, दूर दूर तक नहीं। आपको यदि मिशन, आपने कहा कि मिशन आपकी राजनीति है, आपके जरिए अगर आपको दिया जाए तो आप संभालेंगे या सीधे आप कहेंगे कि नहीं मैं केंद्रीय में? अरे मेरे पास ना शक्ल है ना अकल है, मुझे कौन बनाएगा मुख्यमंत्री? मुझे ना मेरी इच्छा है और ना ही मेरी अपेक्षा है मुख्यमंत्री बनने की इन लोगों से। मैं ये चाहता हूं कि जो भी सामने आए वो बिहार को राइट डायरेक्शन में डाले, बिहार को आगे बढ़ाए, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो। वहाँ के यूथ आज इतना अच्छा कर रहे हैं कि जितने हिंदुस्तान में सर्विसेज, IPS हो, IAS हो, अभी आपने देखा टॉपर 5th नंबर हमारे बिहार का ही था। प्लस हाँ, और मैक्सिमम लड़के जो हैं बिहार से ही आते, लड़के लड़कियां बहुत आते हैं, बहुत अच्छा, दे आर डूइंग सो वेल। लेकिन उसके बावजूद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे हेल्थ सेक्टर का, हमारे एजुकेशन सेक्टर का, इसमें बहुत गिरावट आई है, मिलावट आई है। हमें ठीक करना, मैं चाहता कोई भी आए, मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री बनने का। मैं ढंग का संतरी बन जाऊं तो ही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, अगर मैं अपनी। लेकिन हाँ, अगर पार्टी किसी काबिल समझती है और बिहार के लोग समझते हैं कि मैं उनके कुछ काम आ सकता हूं, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए मैं जरा भी काम आ सकता हूं, तो मैं यथाशक्ति, यथा भक्ति अपना योगदान देने को तैयार हूं, निस्वार्थ भाव से, बगैर किसी एम्बिशन के। मैं इसके ये कह सकता हूं कि मैं साथ हूं, सामने हूं, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री बनने का ना इरादा है, ना दावा है। मैं रेस में दूर दूर तक नहीं हूं, ना रहना चाहता हूं, ना ही मेरी कोई इच्छा है और ना ही अपेक्षा है। लेकिन जो बने वो अच्छे बने, सर्व सहमति से बने, सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप की मर्जी से बने, और उनके ऊपर वो जिम्मेदारी दिया जिसके वो काबिल हों और जिसके हकदार हों। I'd like to take this. Sir, please take this question. Yeah. देखिए, मेरे अंदर क्या पसंद है तो यही बता सकती हैं, लेकिन मैं इनका बता सकता हूँ 3-4 चीजें जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है मेरे लिए, और शायद वही बेस रहा है
मैरिज को इतने साल तक इतने मजबूती के साथ चलाते हुए, उतार चढ़ाव के बावजूद, और वो है इनका फैमिली के लिए कमिटमेंट, इनकी फैमिली के लिए लॉयल्टी, इनका लव एंड अफेक्शन के साथ साथ जो सेवा भावना है वो भी विदाउट एनी कंडीशन। आज अगर हमारे बच्चे भी कहीं कोई क्लब में नहीं और किटी पार्टी में नहीं और कहीं अगर ड्रिंक्स नहीं और जिम कल्चर में हैं और ना स्मोकिंग है, नहीं, ये ऐसा नहीं कि जो करते हैं उनको बुरा मान रहा हूँ, ठीक है, वो किसी कमजोरी के शिकार होंगे वो लोग, पर ये नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मदर का है। तो ये क्वालिटीज मेरी इनकी, इसलिए मैं लाख झेलता नहीं कि इनके सदके सब चुप हो जाता हूँ। उतार चढ़ाव चलते हैं, मैं एक चीज बता देता हूँ, उतार चढ़ाव के नाम पे 2 बार मैं पकड़ा गया था, और एक बार उन्होंने कहा कि बस हो गया, इनफ इज इनफ, अभी आप पकड़े गए हैं। कुछ आप लोगों ने स्टार्ट अपने नारी हीरा के मैगजीन ने कुछ हमारा नाम रख दिया, बेडरूम आइज एंड कॉकटेल आइज एंड शॉटगन एंड लेडी किलर, ये सब नाम यहीं से आए थे, मेघना हाउस से आए थे। 4 नाम जो हैं, कॉकटेल आइज, बेडरूम आइज, लेडी किलर और शॉटगन, ये चारों के चारों मेघना कंपनी से नारी हीरा के आशीर्वाद से आई हैं। अब उसमें 2 बार पकड़ा गया। एक बार वाइफ ने माइल्ड वार्निंग दी, कहा कि देखो गड़बड़ कर रही है आपने, इनफ इज इनफ, आज के बाद इधर बी गुड और बी केयरफुल, आई हैव ऑलवेज प्रेफर टू बी केयरफुल। उसके बाद एक बार और पकड़ लिया रेड हैंडेड, उन्होंने कहा आप शर्म आनी चाहिए, बच्चे हैं छोटे छोटे और आप ये, और चूंकि टेली कैमरा चल रहा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ रेड हैंडेड का मतलब क्या, पर रेड हैंडेड में पकड़ा गया और मेरी वाइफ ने कहा कि देखिए बहुत हो गया, बच्चे छोटे छोटे, लवकुश हैं, सोनाक्षी हैं, और अब अगर आज के बाद मुझे किसी और लड़की के बारे में पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दिन है और आज का दिन मैंने पता चलने ही नहीं दिया। इसे कहते हैं डेडिकेटेड हस्बैंड हो तो ऐसा। अब इनसे पूछिए। That जैसे आप इन्होंने कहा, what are the 5 qualities, or maybe whatever qualities, one quality that you like about her? But let me tell you, that's what he thinks, that मुझे पता नहीं चला. Yeah, that's what he thinks. But I think I have to handle my priorities. So that's the reason why sometimes you let it go. But when it has to happen, it will happen. But is it very easy to be a wife of a very big star? Is it like a wife, I know, has to go through a lot, but then there is a star at home who's so famous, girls are like probably just going on floor for him. Is how difficult or easy it is for a wife to handle? No, I had an advantage because I was in the films myself, and I knew what happens, and I knew that most of it is, usually stories or rumors or something. And I knew that he knows that when he marries, he has to marry the right girl. So that's what he did. That's what I made him do. मैं एक चीज बता दूं, थोड़े दिन पहले पिछले में शादी नहीं कर रहा था कमिटमेंट के बावजूद, तो मैंने कहा था कि यू आर टू गुड फॉर मी, तो ये सबसे कहती थी मेरे फैमिली मेंबर से कि बताइए कोई टू गुड है उससे छोड़ रहा है ना अभी, लेकिन लास्ट 35th ईयर में कह रही हैं कि नो आई एम रियली कन्विंस आई एम टू गुड फॉर यू, यू डोंट डिजर्व। All of you, she was a famous model and had won 35 beauty contests. Wow. Okay. Former Miss India. Former Miss India. I want to see that too. Now, one quality of Shankar. One quality. What should I say? That he listens to you. Caption, What should I say? it can be caption, Beauty and the Beast. Oh, sorry, Beauty and the Beast. No, he's a wonderful father, very, very good father, and loyal, very loyal to whoever he... Husband That is what about husband? That's a question mark. Well, ma'am, don't you think your skin is glowing? You're still looking so gorgeous. Is it the love that is shared here? Yeah, definitely. It's the love that is shared. Yes. I guess marriage is a very big, journey of give and take, where you have to walk together, hand in hand. There are some times when you want to leave the hand, but
cannot do it. Yeah. So definitely we have made a lovely journey. We've traveled a lovely journey all these 35 years, and I hope there will be more of them. And I totally with everybody's best wishes. Yeah. But ma'am, who is one? I know I'm going to come back to you all for the questions. But who's the boss of the house of Sinha House? Who rules Sinha House? Like how he says that I'm not ruling. I am not ruling. This is what my father also does. I'm not ruling. Nobody will believe that. No one will believe that. He is the boss, and he'll always remain the boss. And I've got the permission of the wife to say so. All right, I request my. जी. सोनाक्षी जिस तरह से फिल्में कर रही है ना, डेढ़ करोड़ की हर दूसरी तीसरी फिल्म होती है साल की, आप किस तरह देखते हैं सोनाक्षी की जर्नी? जब फिल्म नंबर 1 दबंग से लेकर अब तक रियलिटी शो भी जज कर रही है, हाउ डू यू सी सोनाक्षी's journey? Sonakshi's journey has been a beautiful one, and all I can say is she's a blessed child. She has the good wishes of everybody around her, and the best part is that she stuck to her originality. She did not let herself go with wearing skimpy clothes and exposing herself. And in fact, I must tell you something. Yesterday she was watching a song with me, some movie song, and it was a song, and the director had put in some people who were like leching. They show it in the movie that they lech. The minute the song got over, she went aside and she took the director aside and told him that I would want you to remove those men leching at me, even in that scene. So that is her consciousness about being in the films. She hasn't let herself go for anything. She has been offered a lot of movies in which she had to wear clothes which were not really going with the kind of background that she was brought up in, and she doesn't feel comfortable doing that. So I'm very happy that she's been able to maintain that and yet be in the top rank of the girls who are working in the industry. Wow, very nice. Well said. सिन्हा सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही लंबे टाइम से पार्ट रहे हैं, सुपरस्टार हैं आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के, लेकिन आजकल के जो एक्टर आते हैं हम देखते हैं कि उनकी शादी तो होती है लेकिन जल्दी सुनाई देता है कि उनका डिवोर्स हो गया, लेकिन शादी होने के बाद वो किसी और के साथ में कनेक्ट होते हैं. तो आप एज एन एक्टर क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? नहीं, मैं अभी एक तो मामला इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और मैं उनको सबक देने वाला कौन होता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ और जानता हूँ और मानता हूँ कि अगर आप शादी ना करें और अगर करते हैं आप, तो मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, उसको निभाना चाहिए, उसको संभालना चाहिए. ये क्या तमाशा है, आप जितना खेल कूद कर लिए बाद में भी अगर करते हैं तो सीट वीट के पकड़े न जाए, तो लेकिन ना करें तो सबसे बेहतर है. और शादी को संभालें, बिकॉज शादी का मतलब सिर्फ पति पत्नी ही नहीं होता है ना. शादी का मतलब कि आपको बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, उनके दोस्त लोग, उनके चाहने वाले, सबके लिए बहुत मुसीबत, बहुत बड़ा स्कार पैदा हो जाता है. इसलिए मैं खुद, हमारे सुचित्रा आई थी तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो रहा है, ये वो, गॉड ब्लेस देम, लेकिन ना होता तो बहुत अच्छा था ये करके. सो ऐसा नहीं कहूँगा को गलत हो रहा, हो सकता कभी लड़की की साइड से गलती हो, चाहे कभी लड़के के साइड से गलती हो, कहीं से वो, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. जैसे कहते हैं सर्जरी इज़ ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन जो सर्जरी है, इसलिए सर्जरी के पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी काउंसलिंग हो, एडुकेट करके एक दूसरे से मिल के रहें. ऐसा तो नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है, फिल्मों में बहुत हुआ है, बहुत सारे लोग जो हैं ज़िंदगी भर का साथ निभाते रहे. अभी आपने देखा है, अभी हमारे सीनियर प्राण जी का ही देखा आपने, कि अभी देखा आपने कुछ दिन पहले तक. तो मैं समझता हूँ कि मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन. मैंने कहा कि मैरिज इज़ फॉर कीप, बट सर्टेनली नॉट फॉर कीप्स. एक सवाल आप लोगों से हमेशा पूछा गया सोनाक्षी की शादी का. हाल ही में शायद ने अरेंज मैरिज की थी और सलमान ने भी इच्छा जताई थी कि वो अरेंज मैरिज करेंगे. सोनाक्षी की क्या लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी? ये हम अभी कैसे, जब हमारे बच्चे एडल्ट हैं तो ये हमारी कोशिश तो ज़रूर होगी कि वो जैसे भी शादी करें वो खुश रहें और उनका अच्छा खासा परिवार चले खुशहाली के साथ, हमारी कोशिश होगी. लेकिन अब ये है कि कल क्या होगा, कल वो हमारी मर्जी से करेंगे, हमें लगता तो है कि हमारी मर्जी से होगी,
जैसे हमसे बहुत लोग पहले सोनाक्षी वाले पूछते थे कि आपने शत्रुघ्न सिन्हा और आपने कैसे अपने बेटी को अलाउ कर दिया फिल्मों में। हमने कहा क्यों, बेटी और बेटे में क्या फ़र्क है? जब मैं बेटों को कर सकता हूँ तो बेटी को क्यों नहीं कर सकता हूँ? बेटियाँ किस मामले में बेटों से कम? मैं तो कहता हूँ हर मामले में बेटियाँ बेटों से ज़्यादा है। और इवन पॉलिटिक्स में भी आजकल देख रहा हूँ कि हर मामले में औरतें जो हैं वो पुरुषों से कुछ ज़्यादा ही निकल रही हैं। आपकी लेगेसी जो अभिनेता के तौर पे थी या बॉलीवुड की लेगेसी सोनाक्षी ने संभाला, क्या राजनीति की लेगेसी भी कोई संभालेंगे आप? देखिए सामने बैठे इनसे पूछे आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे। अब तो बट किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। अगर उनका अपना एप्टीट्यूड हो, अपनी कैपेसिटी हो, अपने अगर क्वालिफाइड एनफ फील कर रहे हो तो आने में हम उस राह को मजबूत करने की कोशिश जरूर करेंगे। हो सकता है कल इन लोगों का भी इंटरेस्ट हो रहा है, देखते हैं, साथ साथ इनका भी है, कुछ का भी है। सोनाक्षी का तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, वो इन लोग का दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो लोग रियाज करेंगे, अभ्यास करेंगे, आने की ख्वाहिश पैदा करेंगे, दिल से सामने लेकर आएंगे तो हमसे जो मदद होगा हम परिवार पेरेंट्स के नाते जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सर, कुछ दिनों पहले आपकी कंटेम्पररी एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी का कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बच्ची की डेथ भी हो गई थी। तो आज हेमा मालिनी जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यदि वो बच्ची के पिता ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, उन्होंने जो ये ट्वीट किया उस पर? मैं इसको दो पार्ट में कर देता हूँ। एक पहली बात तो ये कि हेमा मालिनी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व की मालकिन है। वो बहुत काइंड है, शी इज़ ए वेरी गुड सोल, बहुत बढ़िया औरत है वो, बहुत दयालु हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, जिस हादसे का वो शिकार हुई, वो भी हुई, उसमें कई जगह बात चलने लगी कि सो देखिए छोड़ के चली गई और बच्चों को ले आना था, उसी गाड़ी में बाकी लोगों को ले आना चाहिए था। पहले इस पर मैं कहना चाहूँगा कि ये ठीक नहीं है। अब आप जानते हैं कि एक्सीडेंट के बाद कई बार खुद खून निकल रहा है, खुद उनकी सर्जरी हुई, आदमी डेज्ड हो जाता है, ट्रॉमेटिक हो जाता है, उस समय उसको कुछ सूझता नहीं है। जो आदमी का मुझे अगर उनसे पूछा जाए कि जो डॉक्टर था कि फिजियोथेरेपिस्ट था जो साथ लेके गया, शायद उनको उसका नाम भी नहीं याद होगा। जो आदमी तो गाड़ी चलिए यहाँ से निकलिए, इससे पहले भीड़ बढ़ जाए, इससे पहले कुछ हो जाए, उन्हें ये भी नहीं पता था। हमने जब बात की कि उस गाड़ी में और कौन कौन थे उस वक्त क्या पता चलेगा, हॉस्पिटल चले। तो ये बात मुझे सही नहीं दिखता है। दूसरी बात जो उन्होंने ट्वीट किया है, उस ट्वीट का भी दो भाग है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक रूल इसलिए कि जब लोगों ने उनको बताया है कि उनको जो लोगों ने बताया, जो उनकी जानकारी के हिसाब से वो उधर से जिधर से आ रहे थे, नहीं आना चाहिए था उनको, तो इसलिए उन्होंने कहा एक दरअसल उसके फादर के साथ साथ इन्होंने दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की है। हेमा मालिनी हम लोग साथ भी कहीं साथ जाते थे तो कहती थी, जो हम करते हैं, और कहती थी वो सीट बेल्ट बांध लो, तो सीट बेल्ट हम तो बांधते ही थे, फिर भी कहा हाँ बांध लिया सीट बेल्ट। तो उस मामले में बड़ी कंसर्न लेडी है, बहुत अच्छी लेडी है वो। उन्होंने उसके फादर ने, अगर ट्रैफिक रूल जो कहा गया ट्रैफिक रूल लगता है शायद टूटा वहाँ पे, तो उन्होंने फादर के साथ साथ एक दुनिया को और यंगर जनरेशन को संदेश दिया है कि रूल्स को फॉलो करो, अगर ऐसे करोगे तो कुछ लोगों की जान बच सकती है और ऐसे हादसा से बच सकते हो। ये मतलब है। Okay, can I have just two more questions and then we'll... So, a small question about Lalit Modi. What is your opinion about this whole controversy which is making headlines? Will he be supported by BJP? नहीं, देखो, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दैट। ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है, मामला काफ़ी आगे बढ़ गया और सर्टेनली हमारे पीपल आर स्पोक्समैन एंड साथ ही साथ पार्टी के लीडरशिप, टॉप लीडरशिप ने इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी करके हम सबको भी एक वॉइस से बात करनी चाहिए, एक वॉइस में बात करनी चाहिए। ऐसी बात कुछ अभी नहीं करनी चाहिए कि हम अगर अब यहाँ कुछ कह दूं और ये सब जो है तो अभी शाम के बाद से नई बात कि शत्रुघ्न सिन्हा नारी हीरा के बैठ के शॉटगन टाइटल लेके शॉटगन की तरफ प्रहार करते, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इस पे हम फिर बात करेंगे, बात तो जरूर करेंगे लेकिन फिर कभी करेंगे। आज जैसे कहा कि 35th एनिवर्सरी ईव है, हम थोड़ा लाइट रखेंगे। Keep it a little romantic. There is a very cute couple here. Sir, you'll be sharing screen space with your daughter Sonakshi for the first time in the upcoming film Akira. I'm very nervous. Oh my God! He's very nervous. I'm very nervous. Are you nervous working with Murugadoss, or are you nervous because you're going to be with Sonakshi, who is
when Murugadas, very nice gentleman, when he had come to meet me, so when I entered the room or the drawing room, I thought Murugadas बहुत सीनियर आदमी, बहुत बुजुर्ग आदमी, हम कहा इनमें कौन मुरुगदास इनमें से? ऐसे से I'm the मुरुगदास, अरे इतना सीधा शरीफ आदमी, nice gentleman, and small हम कहा देखो मुरुगदास, I thought you were a very elderly person, ये तो बहुत बुटकू सा निकला है, हीरो निकला, छोटा सा निकला, बढ़िया आदमी निकला वो. So I met him. He's a very unassuming personality and very sharp. He's very good. So definitely, of course, I am doing this film mainly because of Sonakshi and Murugadas. अब हमारे पास उतना कहाँ टाइम है? I've already done more than 250 films. So अभी and politically I'm so busy. I travel so much. But because it was the desire of Murugadas, if I could do, and demand and command of my daughter, the apple of my eye, Sonakshi Sinha, तो उनका आग्रह मुरुगदास का और सोनाक्षी का आदेश मेरे लिए अध्यादेश बन गया और इसलिए मैं कर रहा हूँ. But is it your stand on the FTII controversy? Would you like to help the institute since you're a part of the alumni also? देखो बहुत लोगों की ऐसी ख्वाहिश है, ऐसी बात नहीं कि ख्वाहिश नहीं है. पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, हमें गवर्नमेंट ने भी कहा था जाने के लिए. लेकिन अगर आपको याद होगा तो एक बार मैं फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी का आया वो द चेयरमैन था, विच हैड ए कैबिनेट रैंक पोस्ट. मेरे बाद में जया बच्चन बनी थी, याद है आपको? तो जया बच्चन के पहले सबसे पहले मैं हेड कर रहा था और वो बड़ा सक्सेसफुल स्टेंट था हमारा. उसके बाद लोगों ने कहा कि हाँ कीजिए. फिर कुछ लोगों ने सजेस्ट किया फिर गवर्नमेंट के लोग कि आपके लिए प्रोटोकॉल में ठीक नहीं बैठेगा, बिकॉज कैबिनेट रैंक और उसके बाद यहाँ भी मिनिस्ट्री की बात चल रही थी वो. उसके बाद कहा कि अगर दिन आप जाओगे फिर वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी को एड्रेस करोगे, आपके प्रोटोकॉल में नहीं होगा. कुछ लोगों ने कहा, कुछ सीनियर लीडर्स ने भी कहा, तो ऑन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने भी कहा. तो मैंने कहा ठीक है. दिन उससे विनोद खन्ना गए थे एक बार वहाँ पे. अभी भी कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन मेरा अपना मैम स्टडिंग द मैटर दे सेड कि आपने अभी तो कुछ कहा नहीं है FTII पे. हमने कहा सही बात तो ये है कि नीदर आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय द स्टूडेंट्स नॉर आई हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. ना मुझे स्टूडेंट ने अप्रोच किया है ना गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है. तो इस मामले पे अभी मैं कैसे बोलूं, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ. आई मेट द डायरेक्टर, आई कॉल्ड सम अदर पीपल ऑल्सो कि कल नीड भी अगर बोलना पड़ा मुझे तो किस फ्रेमवर्क में क्या बोलूंगा उसकी तैयारी कर रहा हूँ. हमें अपने बच्चों से, अपने इंस्टीट्यूट से बहुत लगाव है. आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव बीन एन alumni of FTII and I am one of the so called prides of the institute. जो शुरू में जो सबसे ज्यादा नाम आया है उसमें आया. तो वो लोग कह भी रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी भले इंटरिम आ जाएं यहाँ पे और इंटरिम आके अगर भी ज्वाइन कर लें, जब तक सेलेक्ट कमेटी, सर्च कमेटी और लोग को ढूंढे तब तक शत्रुघ्न सिन्हा अगर बन जाए. हमने कहा शत्रुघ्न सिन्हा बन जाए, सुभाष घई बन जाए, जो बन जाए, लेकिन उसके पहले स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए. ये जो सिचुएशन है इसको थोड़ा ठीक करना होगा. कि अभी देखिए आपने ऑलरेडी किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है, गजेंद्र चौहान को, जो भी है उसके पहले बात नहीं हुई थी. लड़के अभी तक स्ट्राइक पे हैं. दे आर वेरी नाइस चिल्ड्रन, नाइस बॉयज एंड दे आर इंटेलेक्चुअल्स. वो लोग बैठे हुए हैं अभी, ठीक है. मामला काफ़ी मेसी हो रहा है. तो इसलिए हमका जब तक इसको एक स्मूथ रास्ता नहीं मिलता है तो उसका क्या होगा जिसको आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है. किसी ने कहा अगर वो स्ट्राइक, वो अगर रिजाइन कर दे तो खुद. हमने कहा कर दे खुद, आप कह रहे हो ना वो करें तो बात कुछ बनती है. आई एम देयर. अगर मेरे जरिए, जैसा मैंने कहा था बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मेरे जरिए FTI के चिल्ड्रन का अगर ब्राइट फ्यूचर के मामले में या FTII को और ग्लोरी देने के मामले में अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो आई एम एन FTI लॉयलिस्ट, आई एम देयर. But sir, what is the reason कि जब आप लोग FTII में थे, आप लोग you came out like there was series of superstars which came out. But अभी क्या मॉड्यूल में चेंज हुआ है? Because for past so many years I haven't heard that. Of course I have few names, but then तो भी वो era वापस नहीं आ पाया है ना. Where you had Jaya Bachchan, Shatrughan Sinha, Denny, all these. अब क्यों नहीं हो पा रहा है? Is there a module change? Do you think that FTII needs like a complete change or makeover? देखो आपके ये भी कह सकते हैं आप, जैसे
फिल्मों में भी देख लो आप, जैसे दिलीप कुमार से लेके प्राण का जिक्र किया, अशोक कुमार और देवानंद और धर्मेंद्र और राजेश खन्ना और जितेंद्र, अमिताभ बच्चन या शत्रुघ्न सिन्हा, जितने लोग आप देखते हैं, या बाद में सलमान खान, शाहरुख खान, जैसे गोविंद, अब वो बात अब नहीं दिख रही। लगता है वो मॉडल बनना बंद हो गया, वो मॉडल बनना बंद। उसी तरह से फिल्म इंस्टीट्यूट के मामले में भी हर जगह डायरेक्शन, डिल्यूशन एंड पोल्यूशन। तो फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में भी कह सकते हैं कि बात है कि काफी हम डाउन हिल जा रहे हैं, लेकिन हम इसको फिर से अच्छा कर सकते हैं। हम तो बहुत जबरदस्त लॉयलिस्ट हैं FTI के, मैं तो कल ही होके आ रहा हूँ वहाँ से, और उनसे मिल के आ रहा हूँ। तो I can, if I'm asked, I only speak to when I'm spoken to. So if I'm definitely, and if I... That will be the last question. I'm sorry. अच्छा, ओके, कोई पानी तो पूछ ले। हाँ, सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि चेंज होता गया, बदलाव होता गया, उसी तरह से जिस तरह से देखा जाए पॉलिटिकल में बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आए हुए लोग जो भी हैं उन लोगों के आक्षेप लगने शुरू हो गए। महाराष्ट्र में मंत्रियों पे आक्षेप लगना शुरू हो गया, वसुंधरा सिंधिया जी पे थी, फिर व्यापम का मामला अपने आप में ही तब्दील होता जाए। आखिर इस पे किस तरह से सरकार अपना काम करे, या आप लोग किस तरह से? और इसी को जोड़ के एक सवाल, कल अमित शाह इन चीजों को लेकर नहीं, अगर मेरी कोई जरूरत होगी, अगर मुझे बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर हमारी कोई जरूरत आवश्यकता है और अगर हमें बुलाते हैं तो हम क्यों नहीं मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जरूर अच्छी बात होगी वो तो। लेकिन हाँ, अभी तक मुझे इसकी कोई सूचना और जानकारी नहीं है, जैसे कई बार मुझे नहीं मिलती है जानकारी। कई लोग हो सकता है मेरी पॉपुलैरिटी से, चाहे मेरे अच्छे इमेज से, मेरी पॉपुलैरिटी में अपनी इनसिक्योरिटी ढूंढते हैं, कई बार उनको लगता है। लेकिन यहाँ वो मामला नहीं, हम कई बार बिहार में, दिल्ली में, कई जगह ऐसा होता है। लेकिन आपने जो कहा, मैं अभी फिलहाल वही कह सकता हूँ जो कल मैंने सुभाष के झा को कहा था, और जो आज आया है, कल आया था DNA में, कि अभी तो फिलहाल यही कह सकता है। ऐसा लगता है कि 13वें महीने में हमारी सरकार को कोई नज़र लग गई है। ये नज़र लगने का ही परिणाम है कि अभी तक सब्सटैंशिएटेड तो कुछ नहीं है, लेकिन सब्सटैंशिएटेड नहीं होने के बावजूद वन आफ्टर द अदर कि आप साहब यहाँ तक आ रहे हैं कि अभी यहाँ तक आ चुके हैं, मध्य प्रदेश से लेके, और अब शायद लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की ओर, नो तरह की। अब ये सब यही इसी 13वें महीने में हेमा जी का एक्सीडेंट भी हुआ। तो हमने, कई लोग कहते हैं कि लगता है 13वें महीने में नजर लग गई है, लेकिन अब हम सब मिलकर जल्दी इन नजर उतारेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जैसे सरकार में जो भी लोग हैं उनकी थोड़ी सी गलतियां हैं, जिस तरह से व्यापम का मामला था, पत्रकार मरता है और स्टेटमेंट के दौरान जिस तरह से बयान दिए जाते हैं, उन चीजों में कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही? देखो, अभी मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, अभी व्यापम पे ले आए हो लास्ट में, अब चलते चलते आप जरा नारी हीरा जी का भी ख्याल करो। ये थोड़ा सा बाद में बैठे। नाइस ऑफ यू, थैंक यू। Very nice evening where we are celebrating his 35th anniversary of togetherness. I felt like I was at home with talking to my father, because my father exactly talks and teases my mother the same way, and I keep on teasing him about his girlfriend. But यही दिन देखने के लिए पाल पोस के बड़ा किया। I truly wish both of them decades and decades of togetherness, and make sure that you prevail your love like this for your children, for yourself too, and for the world to have an example. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen, and of course, thank you very much. Thank you. Just the last thing, I believe I wanted to say this myself because I've never got a chance. No sentence in the film industry or no dialogue in the film industry has ever been complete without the shotgun saying "Khamosh." Khamosh. Nice, ये अच्छा नहीं था. Just the style of yours one more time. Yeah. Khamosh.